Hello 8th standard, this is Yash again from Total Tutors for a subject geography. So लास्ट लेक्चर में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम, उसका जो लोकल टाइम वाला पार्ट है वो हमने कंप्लीट किया था. सो नाउ लेट्स मूव ऑन फर्दर विद द स्टैंडर्ड टाइम. मुंबई इज लोकेटेड एट 73 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड. Kolkata is located at 88 degree east longitude. Find the difference between the longitude of these two cities. So now, if the local time at Mumbai is 3 p.m., then what would be the local time in Kolkata? So, इसमें ऐसा बताया गया है कि जो कलकत्ता है वो ज़्यादा ईस्ट में है कंपैरेटिवली मुंबई से. सो एज वी स्टडीड इन द लोकल टाइम, अगर कोई लॉन्गिट्यूड ईस्ट में ज़्यादा हो तो उसका जो टाइम है वो वेस्ट वाले से आगे होगा. बट इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में हम उस कंडीशन को अप्लाई नहीं कर सकते. क्यों? बिकॉज मुंबई एंड कलकत्ता लाई इन द सेम कंट्री. सो मुंबई एंड कलकत्ता का जो टाइम है वो सेम होगा. सो अगर मुंबई में 3 PM है देन कलकत्ता में भी 3 AM होगा, भले ही कलकत्ता का जो लॉन्गिट्यूड है वो ज़्यादा ईस्ट में मुंबई से पड़ता है. So now let's take the geographical explanation. Both Mumbai and Kolkata are located within India but on different longitude. The local time differ by an hour. If there are different local time within a country because of longitude differences, then there will be a lack of synchronization in the routine activities in the country. If each one follows their local time, discrepancies emerge in carrying out daily business in the country. Therefore, generally the local time at the longitude, which generally passes through the middle of the country, is deemed to be the standard time for the country. This standard time is used all over the country. Now, होता क्या है? मुंबई एंड कलकत्ता बोथ लाइज इन द सेम कंट्री. अगर मुंबई एंड कलकत्ता के जो लोकल टाइम में डिफरेंस है वो 1 आवर का डिफरेंस है. सो नाउ होता क्या है, अगर मुंबई एंड कलकत्ता का टाइम है वो हमने अगर डिफ़र रखा, फॉर एग्जांपल अगर दोनों टाइम्स में 1 आवर का डिफरेंस रखा, तो जो बिज़नेस ट्रांजैक्शन है उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा. दोनों कंट्री के टाइम को अगर अलग अलग रहे तो, बिकॉज मुंबई एंड कलकत्ता बोथ लाइज इन द सेम कंट्री. अगर कंट्री डिफ़र करते थे तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता था, पर अगर सेम कंट्री में आप दो डिफरेंट टाइम जोन्स के साथ चल रहे हो, देन इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ केओस अमॉन्ग्स द पीपल. सो दैट इज़ वाई मुंबई एंड कलकत्ता का टाइम सेम ही होता है, भले ही उनके लॉन्गिट्यूड डिफरेंसेस है, लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस है, एंड मुंबई एंड कलकत्ता के टाइम में भी 1 आवर का डिफरेंस है. विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस एट ग्लोबल लेवल, देयर शुड बी compatibility between the standard time of various country. To facilitate this, the world has been divided into 24 time zone, that is 24-hour zone. This time zone have been created with reference to the prime meridian itself. Prime meridian is the center of the globe, center of the world. Normally, if the difference between the longitude extent of the country is less than 1 or 2 hours only, one standard time is considered for that country. But if the longitude extent is more than that, then one standard time is not enough, and in such countries more than one standard time zones are considered. Now, अगर आपके कंट्री में जो डिफरेंसेस है लॉन्गिट्यूड्स में वो 1 आवर या 2 आवर से कम है तो एक ही टाइम कंसिडर होता है. बट अगर आपके कंट्री में 2 लॉन्गिट्यूड्स है और जो टाइम जोन है वो 2 आवर्स 3 आवर्स से ज़्यादा है, सो वो कंट्री में दो स्टैंडर्ड टाइम चलते हैं. इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. The Indian Standard Time IST has been decided according to the 82 degree 30 degree east longitude, which passes through Mirzapur near Allahabad, Uttar Pradesh. The longitude passes through the middle of the country with reference to the longitude and extent. The local time at this longitude has been selected as the standard time of the whole country. When the sun is directly overhead on this longitude, then it is assumed that it is 12 noon everywhere in India. There is no difference of more than 1 hour between the local time at 82 degree, 30 degree and other places in the country. So now होता क्या है, जो middle of the country है, middle of the India है, that is मिर्ज़ापुर नियर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, वो इंडिया का मिड पॉइंट है.
तो वहाँ पे जो टाइम होता है वही टाइम पूरे कंट्री में होता है, पूरे कंट्री में वही टाइम चलता है। भले ही लॉन्गिट्यूड्स में डिफ़र हो, पर जो मिर्ज़ापुर में टाइम चलता है वही पूरे कंट्री में चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मिर्ज़ापुर में 12 बजे है उस लोकल टाइम के हिसाब से, तो वही पूरा टाइम पूरे इंडिया में चलेगा, बिकॉज मिर्ज़ापुर इज़ द सेंटर मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया, इज़ द मिडल ऑफ द इंडिया। Now, what is Universal Standard Time? Foreign international coordinates between countries, the local time at Greenwich, that is GMT in England, is considered to be the international standard time. The difference in standard time of various countries is calculated with reference to GMT. The Indian standard time is 5 hours 30 minutes ahead of GMT. So, if it is 5 p.m. at Greenwich, then in India it would be 10:30 p.m. सो ना होता यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम कैसे वर्क करता है। जो ग्रीनविच है वो प्राइम मेरिडियन है पूरे ग्लोब का, वो सेंटर मोस्ट पार्ट है। सो ग्रीनविच का जो टाइम है वो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम है। सो उस हिसाब से बाकी के लोकल टाइम, बाकी के स्टैंडर्ड टाइम, बाकी के कंट्रीज़ के टाइम कैलकुलेट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया का जो टाइम है वो 5 hours 30 minutes GMT, दैट इज़ ग्रीनविच मीन टाइम से 5 hours 30 minutes आगे चलता है। इसी वजह से अगर ग्रीनविच में शाम के 5 बजे हो गए तो वही टाइम पे इंडिया में रात के 10:30 PM हो गए होंगे। सो दिस इज़ व्हाट यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम इज़। आई होप यू गाइस वुड हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।